में लिखिए सबसे पहले गिवन एक्सरसाइज 10.2 a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter. Where D is the point of contact of the side BC. Where D is the point of contact of the side BC. And you are given CD is equal to 6 centimeter. ये जो distance है it is 6 centimeter and BD is equal to 8 centimeter. ये दोनों distances आपको given है. Clear? You are not given these point of contacts. इनको हम क्या ले लेते हैं? E and F. Let this point be E and F. तो लिखिए let E and F be the point of contact, be the points of contact of sides AB and AC with the circle. ठीक है, with the circle किसके हैं? ट्राइंगल और सर्कल के जो साइड्स टच करती हैं, एक पॉइंट E है और दूसरा F है. क्लियर? अब आपको ये पता है कि जो ये वाली डिस्टेंस है OD, इट इज रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर. क्लियर? CD एंड CF ये दोनों इक्वल रहेंगी? इक्वल रहेंगी? C इज एनी एक्सटीरियर पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे CD इज इक्वल टू CF कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर. क्लियर? दूसरी तरफ BD इज इक्वल टू BE 8 सेंटीमीटर. So it will be 8 centimeter. Similarly AF is equal to AA और वो वैल्यू गिवन नहीं है, उसको हमने क्या सपोज कर दिया? X. Clear? What is the reason of all these? Length of tangents drawn from an external point always equal. तो रीजन इकट्ठा आप लिख सकते हो. Length of tangents drawn from external point are equal. क्लियर? ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे दो टेंजेंट जो आते हैं दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है. अब आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये वाली 8 सेंटीमीटर है. इन दोनों को हमने क्या सपोज कर लिया? एक्स सपोज कर लिया. नाउ वी नो ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. What will be the length? AB. AB की लेंथ आपके पास कितनी होगी? X plus 8 सेंटीमीटर. BC की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 8 plus 6 14 सेंटीमीटर. और AC की वैल्यू X plus 6 सेंटीमीटर. ठीक है? X plus 6 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स पता है? We can find the area of triangle by Giron's formula. So what is S? It is C upon 2. semi-perimeter. Semi-perimeter होता है. So it will be AB plus BC plus CA whole divided by 2. Clear? अब इन सबको अगर आप ऐड करोगे AB plus BC plus AC over 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 2x plus 8 plus 14 plus x plus 6 whole divided by 2. So x plus x. How many? 2x plus 38. Divided by 2. It will be x. Okay?
8 plus 6 14 plus 14 2 times 14 divided by 2. So it will be x plus 14 centimeter, the value of s. Clear? Now we can find area of triangle. So which formula you have to use? Taylor's formula. Use that formula and find out the area of triangle. So by Taylor's formula, area of triangle ABC is equal to, क्या फॉर्मूला आता है? S minus C whole under root. Substitute the values. It will be S की वैल्यू आपके पास x plus 14 into x plus 14 minus value of a. Any of the side we can take ABC. Otherwise जनरली क्या होता है? A की अपोजिट साइड जो है, जो वर्टेक्स A है, उसकी अपोजिट साइड को हम क्या लेते हैं? स्मॉल a. B की अपोजिट साइड को स्मॉल b और C की अपोजिट साइड को स्मॉल c. अदरवाइज अगर कोई और ही नेम है, सपोज इट इज PQR, तो हम किसी को भी ABC ले सकते हैं. क्लियर? तो अब यहाँ पे माइनस a कौन सी हो गई? 6 plus 8 14. इसमें से आपने 14 माइनस कर दिए. उसके बाद x plus 14 माइनस साइड b, दैट इज 6 plus x. तो 6 यहाँ पे साइन क्या आएगा? माइनस का, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. फिर उसके बाद x plus 14 minus a, s minus b, s minus c. x plus 14 minus 8 minus x whole under root. इसका भी साथ में आएगा. तो आपके पास हो गया x plus 14, यहाँ पे 14 कट हो जाएंगे और यहाँ पे x कट हो जाएगा, यहाँ पे भी x कट हो जाएगा. आपके पास क्या वैल्यूज रहेगी? 6 x plus 14 into x into 8. अब यहाँ पे 14 में से 6 निकल के 8, 14 में से 8 निकल के 6 whole under root. So we have area ABC is equal to under root x plus 14 into x into 8 into 6. Let it be number 1. ठीक है? क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Is there any other way out to find the area of triangle? Yes. तो हमें इक्वेशन बनाने के लिए कम से कम 2 एरियाज चाहिए ऑफ सेम फिगर, so that we can compare those. Okay? तो सेकंड मेथड क्या है इसमें? 1.2 base. हमारे पास ये क्या है? रेडियस. And we know radius is always perpendicular to the tangent to the point of contact. Point of contact D है. OD is perpendicular to BC. अब ये 1 पॉइंट पे जो साइड्स इसकी टच कर रही हैं, वो साइड्स क्या हैं? टेंजेंट्स हैं. टेंजेंट्स है ना? और ये जो टेंजेंट है उसका परपेंडिकुलर क्या है? OC. क्लियर? अब यहाँ OD. So OD is perpendicular to BC. दूसरी साइड पे OF is perpendicular to AC and OE is perpendicular to AB. ये सारे परपेंडिकुलर्स हैं इन साइड्स पे. क्लियर? अब अगर हम ये ट्रायंगल की साइड्स को ज्वाइन कर देते हैं तो आपके पास ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल AOC, और एंगल COB, ये सेकंड ट्रायंगल, और ये थर्ड ट्रायंगल. पूरी ट्रायंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 3 पार्ट्स. So we can say area of bigger triangle is equal to sum of areas of 3 smaller triangles. Yeah. So here area ABC is equal to. अब इनका रीजन क्या हुआ इनका? Because tangent is perpendicular to radius and the point of contact. Clear? तो ABC का एरिया क्या लिख लिया हमने? एरिया AOB फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया COD BOC प्लस एरिया AOC. तीन ट्रायंगल्स का एरिया जिनके हमें बेसिस भी पता है और हाइट भी पता है. हाँ जी, हो गया साथ साथ में.
हाँ जी। अब आपने इसको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ABC बाय अनदर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। बेस क्या है उसमें? ट्रायंगल AOB। अब बेस AOB है, बेस BOB है, बेस AB भी है। हमें कौन सा लेना है? AB। इसका हमें परपेंडिकुलर पता है, क्लियर? अब हमें नहीं पता AOB क्या परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किस पे है? AB पे। तो हम बेस ले रहे हैं AB हाइट OE इनटू हाइट OE। रेडियस के इक्वल, ठीक है, R ओवर 2। दूसरी ट्रायंगल में BC इनटू R ओवर 2 प्लस AC इनटू R ओवर 2, क्लियर? अब यहाँ से आपके पास R हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, बीच में आपके पास रह गया AB प्लस BC प्लस Upon AC 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू R। इसको हम क्या बोलते हैं? AB प्लस BC प्लस C AB डिवाइडेड बाय 2 नहीं सेमी पैरामीटर है ना? Yes. इनटू S दैट इज एरिया ABC। ये अलग से एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू R, जो अंदर इसकी सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस इनटू सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। अब पुट द वैल्यूज, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। सेमी पैरामीटर कितना था? X plus 14। निकाल चुके हैं ना हम x की वैल्यू, वहां पे निकाली हुई है। वी हैव टू यूज दिस वैल्यू, अदरवाइज दोबारा भी निकाल सकते। x plus 14, क्लियर? लेट इट बी नंबर 2, ठीक है। अब इसमें अगर आपने दोनों को कंपेयर किया तो दोनों एरियाज आपस में इक्वल रहेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपने फर्स्ट केस में कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास? अंडर रूट x प्लस 14 इंटू x इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू, दूसरे केस में आपके पास जो वैल्यू आई 4 इंटू x प्लस 14। इस तरफ स्क्वायर रूट है और इसके अंदर जो वैल्यू है उसका हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते ना, तो क्या करना होगा हमें? दोनों तरफ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। इधर भी स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट है और इधर भी स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएंगे। आपके पास रह गया x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 स्क्वायर कितना हो गया? पावर 2 है ना ऊपर, 4 स्क्वायर इज 16 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 बिकॉज पावर कितनी है? 2 है। x प्लस 14 से x प्लस 14 कट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड है ये। क्यों कट कर सकते हैं? बिकॉज दीज आर नॉन जीरोस। अगर ये जीरो होते तो इनको कट नहीं कर सकते थे, क्लियर? x प्लस 14 जो वैल्यू है इट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाती है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -40। पॉसिबल है? क्या है x, क्या है? साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू हमेशा नॉन जीरो रहेगी, ठीक है, इसलिए हम इसको कट कर सकते हैं। कौन सी नहीं कट कर सकते? जीरो को जीरो से भी कट कर सकते। तो आपके पास क्या हो गया? 8 मतलब 16, फिर 2 से यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x प्लस 14 विच इम्प्लाइज 3x माइनस x। कितनी वैल्यू लिखूं? 3x माइनस x इधर हो गए, 14 दूसरी तरफ और x is equal to 14 x is equal to 7 centimeter. Here now substitute these values, you will get the value of AB and AC. AB की वैल्यू आपके पास कितनी थी? x plus 8, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 7 plus 8 15 सेंटीमीटर। सो आपके पास AB कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर और AC 7 plus 6 13. AC is equal to 13 centimeter. These are the two values you were